Okay. So hello everyone. We were discussing about the phycomycetes in the last class. Okay, we were discussing about the phycomycetes in the last class. Okay. And now today we are going to discuss about the ascomycetes. Okay, today we are going to discuss about the ascomycetes, that is the another class of the kingdom fungi. Okay. Now ascomycetes are known as the sac-like fungi. ठीक है, the ascomycetes are known as the sac-like fungi. ठीक है, now these are mostly multicellular. These are mostly multicellular, जैसे कि पेनिसिलियम. ठीक है, जो एस्कोमाइसिटीज है, ओके, दीज आर सैक लाइक. ओके, सैक लाइक होती है, एक कोई कंटेनर होता है ना सैक एक, ओके, उसके जैसी होती है. एस्कोमाइसिटीज आर सैक लाइक फंजाई. ठीक है, मोस्टली दीज आर मल्टी सेल्यूलर. ठीक है, मोस्टली दीज आर मल्टी सेल्यूलर. इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पेनिसिलियम notatum. Okay, this is the same fungus that is responsible for the making of the antibiotic penicillin. Okay, this is the same fungus that is responsible for the formation or the synthesis of the antibiotic penicillin. Okay, or they could be unicellular as well. ठीक है, or they could be unicellular as well, like the yeast. Okay, like the yeast. Okay, उसमें भी जो this is just an general information, उसमें भी the name Saccharomyces cerevisiae. Okay, it is very important. You will learn about it in the 12th standard. ठीक है, that this is a very important yeast. Okay, which helps in the this beverage industry, etc. Okay, so ascomycete could be basically of the two types, that is the multicellular as well as unicellular. ठीक है, मोस्टली कैसी होती है? मल्टीसेल्युलर, बट इट ऑल्सो कुड बी a unicellular organism like the yeast. ठीक है, अब ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन थी. नाउ इफ वी टॉक अबाउट देयर हैबिटेट. ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट देयर हैबिटेट, सो sorry, if we talk about their mode of nutrition, ठीक है, so these are saprophytic. ठीक है, these are saprophytic or the decomposers. ठीक है, saprophytic होते हैं, decomposers होते हैं, parasitic होते हैं, या coprophilous होते हैं, मतलब living on the cow dung और actually any dung. ओके, सो ये क्या कैसे कैसे हो सकता है? सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, ओके, डीकम्पोजर्स हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, और कॉप्रोफिलस होते हैं. ठीक है, कॉप्रोफिलस हो सकते हैं. ओके, अब व्हेन वी टॉक अबाउट द माइसीलियम, व्हेन वी टॉक अबाउट द माइसीलियम, when we talk about the mycelium, it is branched and septate. अब इसमें branches भी है. पहले वाला क्या था? एक normal hyphae था. ठीक है, जिसके अंदर क्या था? multinucleated cytoplasm था. Now the hyphae is branched as well. Okay, now the hyphae is branched and सेप्टेट. ठीक है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. ये मैं आपको एक इजी प्रेजेंटेशन बता रही हूँ. ठीक है, कि इट इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. ओके, नाउ द asexual spores are the conidia. Now in the phycomycetes the asexual spores were the zoospores. ठीक है, the asexual spores were the zoospores, but in this case the ascomycetes, these are the conidia. ठीक है, these are the conidia. Okay, and these are also exogenously produced. The zoospores were endogenously produced in the sporangium, whereas these conidia are formed exogenously on the special mycelium called as conidiophores. Okay, there are specialized myceliums. ठीक है,
जिसके ऊपर क्या बनती है, ये कोनिडियाज बनते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये उसी पे क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। द कोनिडियाज ऑन जर्मिनेट प्रोड्यूस दी माइसीलियम अगेन, ओके। वही बात रही ना कि ये स्पोर्स एंड में जाके क्या करते हैं, खुद का ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये स्पोर्स क्या करते हैं, अपना एक नया पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपने आप से, ठीक है। तो दीज कोनिडियाज ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस द माइसीलियम, ठीक है। अब फाइकोमाइसिटीज तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही था, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं था। बट इसमें क्या होगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा, और उसमें जो स्पोर्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर्स, ठीक है। उसको अपन क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर्स। और ये जो सेक्सुअल स्पोर्स है, एस्कोस्पोर्स, एक सेकेंड, ये जो एस्कोस्पोर्स है, ये जो सेक्सुअल स्पोर्स है, ठीक है, ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं ना सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एस्काई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एस्काई, ठीक है। अब ये जो एस्काइज हैं, ठीक है, these are arranged in a fruiting bodies, you know, an arrangement of the fruiting bodies, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प्स, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प्स बोलते हैं, ओके। नाउ इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एस्पर्जुलस हो जाएगा, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा, ठीक है। एस्पर्जुलस, क्लेविसेप्स और द न्यूरोस्पोरा, ठीक है। अब ये जो न्यूरोस्पोरा है, इसका जो जेनेटिक इसका क्या है, जेनेटिक्स में काफ़ी सिग्निफिकेंस है। जेनेटिक्स भी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका क्या है, जेनेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ओके। नाउ जेनेटिक्स के अलावा इसके कुछ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, काफ़ी एडिबल होते हैं, वो क्या होते हैं, काफ़ी एडिबल होते हैं, ओके। सो अगर हम बात करें अब वापस एस्कोमाइसिटीज की, तो उसमें हम क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, सबसे पहले कि दीज आर सैक लाइक फंजाई, ठीक है, दीज आर सैक लाइक फंजाई, ओके। दीज कुड बी मल्टी सेलुलर, ब्रैकेट में आप मोस्टली मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल करके आप लिख सकते हो पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेल्युलर, और उसका एग्जाम्पल करके आप लिख सकते हो यीस्ट, ओके। उसके बाद वी विल राइट के द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, वो कौन सा फॉर्म दिखाता है, तो दीज कुड बी सेप्रोफाइट्स, द डीकम्पोजर्स और द पैरासाइट्स, ठीक है, द सेप्रोफाइट्स, द डीकम्पोजर्स और द पैरासाइट्स, ओके। नाउ the next point that we are going to discuss is the reproduction in the ascomycetes, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। द एस्कोमाइसिटीज परफॉर्म सेक्सुअल एज वेल एज asexual reproduction, ठीक है। in the asexual reproduction they reproduce by the zoospores, ठीक है, the conidia, okay। in the asexual reproduction these reproduce by the spores known as the conidia, okay। and these conidias are formed exogenously, ठीक है, these conidias are formed exogenously मतलब बाहर ही स्ट्रक्चर बॉडी के, okay। exogenously on specialized mycelium known as the conidiophores, ठीक है, on the specialized mycelium known as the conidiophores, okay। the next is the sexual mode of reproduction. The sexual mode of reproduction occurs with the help of the ascospores, ठीक है। the sexual mode of reproduction occurs with the help of the ascospores, okay। and these ascospores are formed in a fruiting bodies, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एस्काई बोलते हैं, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, these are formed in some sac like structure, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एस्काई बोलते हैं, ठीक है। और ये एस्काई कहाँ लोकेटेड होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है,
कुछ फ्रूटिंग बॉडीज में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प्स बोलते हैं, ठीक है। अगर अपन इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो इट विल बी एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड द न्यूरोस्पोरा, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करो एक बार। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द बेसिडियोमाइसिटीज। अब इसका जो सबसे कॉमन इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज द मशरूम्स। इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है दैट इज द मशरूम्स, ठीक है। मशरूम्स इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है। बाकी और एग्जांपल्स होते हैं ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, ठीक है, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। बट बेसिडियोमाइसिटीज को हमको कैसे याद रखना है, मशरूम से। और कुछ याद आए नहीं आए, ये तो याद आ ही जाना चाहिए, ठीक है। अब ये कहाँ पे हैबिटेट में ग्रो करेगी, अगेन मतलब सॉइल में, ठीक है, ट्री स्टम्प्स पे, लॉग्स में, ओके। तो यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा, फेवरेबल एनवायरनमेंट हो जाएगा ग्रो करने के लिए, ठीक है। क्या क्या हो गया, सॉइल में ग्रो कर रही है, ठीक है, लॉग्स पे ग्रो कर रही है और ट्री स्टम्प्स पे ग्रो कर रही है, एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट्स, ठीक है, एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी एज द पैरासाइट्स। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रस्ट एंड स्मट्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रस्ट एंड स्मट्स, ठीक है। अब ये तो क्या हुआ, इनका हैबिटेट हुआ, ठीक है, एनवायरनमेंट हुआ जहाँ ये क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ रहते हैं ये, सॉइल में, लॉग्स में, ट्री स्टम्प्स पे, ओके, और प्लांट बॉडीज के अंदर भी रहते हैं एज पैरासाइट्स, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रस्ट एंड स्मट्स, ठीक है। अब ये तो हुई इनकी हैबिटेट की बात। व्हेन वी टॉक अबाउट द माइसीलियम, अगेन दे आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, ठीक है, अगेन दे आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, ओके, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, ओके। नाउ व्हेन वी कम टू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, कि हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, तो दे रिप्रोड्यूस बाय मेनली द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, एक चीज याद रखो कि जो फर्स्ट टाइप था दैट इज द फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, उसने क्या किया कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अपना मेन रिप्रोडक्शन रखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज नॉट देयर, ओके। नाउ जो बीच का था दैट इज द एस्कोमाइसिटीज, ओके, उसने क्या किया, दोनों ही मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को I'd say अडेप्ट किया है ना, दोनों ही करती है, वो परफॉर्म करती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। लेकिन अगेन जैसे ही हम थर्ड फंजाई पे आ गए दैट इज द बेसिडियोमाइसिटीज, तो इट इज अगेन यू नो जो उसका मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड जब हम 12th में चैप्टर नंबर 1, 2 में ये डिस्कस करते हैं कि जो as you know as the organism's complexity increases, as the level of the organism increases, they adapt to the sexual mode of reproduction। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होता, इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है, कि फर्स्ट क्या था फाइकोमाइसिटीज, सेकंड क्या था बेसिडियो, थर्ड सेकंड क्या था एस्को, और थर्ड हो जाएगा बेसिडियो, एंड फोर्थ हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सिर्फ एसेक्सुअल कर रहा है, सेकंड वाला सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों कर रहा है, और थर्ड वाला क्या कर रहा है, सिर्फ सेक्सुअल कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाले में स्ट्रक्चर्स क्या थे, ज़ूस्पोर्स थे, ओके, और एप्लेनोस्पोर्स थे। सेकंड वाले में कोनिडिया था और क्या था, एस्कोस्पोर्स थे, ओके। अब थर्ड वाले में क्या आ जाएगा इसमें कि जो स्पोर्स है, एसेक्सुअल स्पोर्स है, वो क्या है, एब्सेंट है, एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें क्या है, एब्सेंट है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से
रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये एसेक्सुअल तो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे बेसिडियोमाइसिटीज क्या कर रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को अपना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रख रहा है, ठीक है। और उसमें भी ये क्या कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन, उसमें भी ये क्या कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन कर रहा है, ठीक है। जिसमें कि एक अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होंगे और हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा, नए स्ट्रक्चर या नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो asexual reproduction is not found or asexual spores are not found, but the vegetative reproduction is common, ठीक है। but the vegetative reproduction is common, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, sexual organs are absent, ठीक है। इसमें sexual organs are absent, don't forget I did not say sexual reproduction is absent, only the sexual organs are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different stains or genotypes। इसमें क्या होती है, प्लाज्मोगैमी तो हो ही जाती है, प्रोटोप्लाज्म का क्या हो जाता है, फ्यूजन तो हो ही जाता है, चाहे पूरे सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट ना हो के गेमीट्स बन रहे हो अलग अलग से, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, ठीक है, सेक्सुअल सेल्स क्या होते हैं, गेमीट्स। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, जो सोमैटिक, जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल सेक्सुअल सेल्स नहीं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल है, कोई गेमीट नहीं है, इन्होंने आपस में क्या किया, फ्यूज करके प्लाज्मोगैमी कर ली, इन्होंने आपस में फ्यूज करके क्या कर ली, प्लाज्मोगैमी कर ली, ठीक है। और इनका रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एक डायकैरियोटिक स्टेज। इनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, एक डायकैरियोटिक स्टेज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो सबसे पहले जो डायकैरियोटिक स्टेज मिली है वो अपन को कहाँ मिली है, बेसिडियोस्पोर्स में, ठीक है। कि इमीडिएटली क्या कर रही है, न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं करती, क्योंकि ये वेजिटेटिव जो सेल्स है ये किसी भी स्ट्रेन के हो सकते हैं, किसी भी जीनोटाइप के हो सकते हैं, ठीक है। पर ये क्या करते हैं, आपस में फ्यूज कर लेते हैं, एंड द कैरियोगैमी डज नॉट अकर immediately, hence it results in the formation of a dikaryotic stage, ठीक है। hence it results in the formation of the dikaryotic stage, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि the karyogamy and the zygote formation takes place, ठीक है। the karyogamy and the meiosis takes place in the basidium producing 4 basidiospores, ठीक है। बेसिडियोस्पोर्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बेसिडियम, ठीक है। अब ये क्या होती है, अगेन ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेसिडियोस्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कौन सा था, एस्काई थे, और इसमें क्या है, बेसिडियम है या बेसिडियाज हैं, ओके। एंड दीज आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड द बेसिडियोकार्प्स, ठीक है। दी उसमें कौन से थे, एस्कोकार्प्स थे, और इसमें क्या है, बेसिडियोकार्प्स है, ठीक है। एंड सम मेंबर्स आर एगैरिकस, दैट इज द मशरूम, यूस्टिलेगा दैट इज मड, प्यूसिनिया दैट इज रस्ट फंगस, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, इसके 3 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, एगैरिकस, यूस्टिलेगा एंड प्यूसिनिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। इसको भी एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं पूरा, ओके। फर्स्ट क्या आ जाएगा भाई कि इनके जो कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, मशरूम हो जाएंगे, ओके। मशरूम हो जाएंगे, पफ बॉल्स या ब्रैकेट फंजाई, ठीक है। इससे अपन को ये चीज याद रहेगी। उसके बाद क्या हो जाएगा कि इनका हैबिटेट आ जाएगा, और हैबिटेट में क्या आ जाएगा, हैबिटेट के बाद क्या आ जाएगा कि हैबिटेट में क्या आ जाएगा कि दीज ग्रो इन सॉइल, लॉग्स, ट्री स्टम्प्स, है ना। और कभी कभी पैरासाइट्स की तरह भी मिलते हैं इन प्लांट्स, ओके। फिर आ जाएगा जो माइसीलियम है वो क्या होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। उसके बाद आ जाएगा हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बाद आ जाएगा हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें कि एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड, एंड
the sexual organs are also absent, ठीक है, but the plasmogamy takes place by fusion of the two vegetative cells, ठीक है, and in this the basidiomycetes shows the formation of the intermediate stage, that is the dikaryotic stage, in which the protoplasma has fused but the nucleus still has not fused, okay, means the cell is having two nucleus, okay, and this stage is known as the dikaryotic stage, ठीक है, this stage is known as the dikaryotic stage, ठीक है. Now after that the karyogamy occurs, ठीक है. Sorry, I forgot this point. The resultant structure is dikaryotic stage, okay, which ultimately gives rise to the basidium. जैसे वो उसमें conidium form कर रहा था ना पूरा, okay, वैसे ही इसमें क्या कर रहा है, basidium form कर रहा है, ठीक है. फिर क्या होता है कि the karyogamy and the meiosis takes place in the basidium forming the 4 basidiospores, ठीक है. अब ये basidiospores यहाँ पे क्या होता है, exogenously produced होते हैं on the basidium, ठीक है. These are produced on the basidium exogenously, ठीक है. Now the basidias are arranged in fruiting bodies, जिसको अपन क्या बोलते हैं, basidiocarps. और इसके common examples क्या हो जाएंगे, Ustilaga, Puccinia and Agaricus, ठीक है. So this is basically about the basidiomycetes, okay. Now the fourth one is the deuteromycetes, ठीक है. The fourth one is the ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है. अब ड्यूटेरोमाइसिटीज तो वैसे ही बदनाम है, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ अभी तक सेक्सुअल फेज और वेजिटेटिव फेज ही क्या है हम जानते हैं या डिस्कवर हो पाया है कि दे रिप्रोड्यूस बाय द asexual or the vegetative phases only, ठीक है. When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to, okay. तो क्यों इसको imperfect fungi बोलते हैं, this is a good viva question also, ठीक है, कि which fungi or the which class of fungi is known as the imperfect fungi and why, okay. The deuteromycetes is known as the imperfect fungi, and because in this fungi the only the asexual and the vegetative phases of the fungi are known, ठीक है. जब सेक्सुअल फॉर्म, बस इसका आंसर तो यहीं तक होगा, ठीक है. लेकिन सेक्सुअल फॉर्म जब भी डिस्कवर हुए तो वो कैरेक्टर्स क्या करते थे, किसी और ग्रुप से मैच करते थे, तो फिर उनको किसी और ग्रुप में डाल दिया गया, ठीक है. Now it is also possible that the asexual and the vegetative stage have been given one name and placed under deuteromycetes, ठीक है, and the sexual stage another, okay. तो अभी क्या है कि it is still very confusing, okay. लेकिन जनरली क्या है कि भाई ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम बोलते ही इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए हैं क्योंकि ये क्या करती है, एसेक्सुअल मोड से क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है. नाउ वन परफेक्ट sexual stages of members of deuteromycetes were discovered. They were often moved to ascomycetes and basidiomycetes, इसलिए मैं इसको पूरा रीड कर रही हूँ, ठीक है. The deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. The deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia, ठीक है. And the mycelium is septate and branched. The mycelium is septate and ब्रांच, ठीक है. अब इसके कुछ मेंबर्स क्या होते हैं, ये सब एक नॉर्मल चीज थी, ओके. ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल यही चीज है कि इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है क्योंकि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेसेस ही अभी तक क्या है, नोन है, ठीक है. उसके बाद वी कैन स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हेयर, ओके. द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय द मींस ऑफ द एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है. माइसीलियम इसका भी क्या होता है, सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है. Now some members are saprophytes or parasites while large number of them are decomposer of litter and help in mineral cycling, ठीक है. This is important कि some members are
सेप्रोफाइटिक, इसमें ठीक है पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ क्या होते हैं डीकम्पोजर्स होते हैं ऑफ लिटर एंड हेल्प इन द मिनरल साइक्लिंग, ठीक है, दे हेल्प इन द मिनरल साइक्लिंग, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, ठीक है, ये आप याद रख सकते हो, चाहे इसको छोड़ दो, बाकी ट्राइकोडर्मा और अल्टरनेरिया तो आर वेरी इजी, वी कैन रिमेम्बर दिस, ठीक है। तो इसमें क्या है इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं इसको, asexual and vegetative phases are known because okay now the deuteromycetes reproduce only by the asexual spores known as the conidia, ठीक है, these reproduce only by the asexual spores known as the conidia, the mycelium is septate, okay, and branch, और कुछ मेंबर्स इसके क्या होते हैं सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं और डीकम्पोजर्स भी होते हैं साथ में, ठीक है। और डीकम्पोज किसको करते हैं ये लिटर को, और इसलिए ये किस में काम आते हैं मिनरल रिसाइकलिंग में भी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम फंजाई, दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम फंजाई, ओके। The next is the kingdom Plantae and Animalia. Actually these are two separate chapters, okay. Chapter number 3 is the kingdom Plantae and this chapter number 4 is the kingdom Animalia. So anyway we are going to discuss it in detail in the next chapters, ठीक है, यही chapters करने अब हमको, और लेकिन still let's read it out, okay. The kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms commonly called as plants, okay. Now a few members are partially heterotrophic such as the insectivorous plants or parasites, okay. The bladderwort and the Venus flytrap are examples of the insectivorous plants, okay. ये चीज आपने सुनी होगी Venus flytrap, okay, के जो कार्टून्स में भी बताते हैं, इफ यू रिमेम्बर, के ये अपना ऐसे मुंह खोलते हैं और इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, नो दिस, तो ये आपने बहुत जगह देखा होगा। तो दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ प्लांट्स ओनली, है ना। वैसे तो प्लांट क्या होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन सम ऑफ देम आर ऑल्सो इंसेक्टिवोरस, ओके, सच एज इन Venus flytraps and bladderwort, okay, and Cuscata is a parasite, okay. The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made of the cellulose. We know what is chloroplast, we know what is cell wall very well, okay. Now the life cycle of plant has two distinct phases, ठीक है, the diploid sporophytic and the haploid गेमेटोफाइटिक। ये चीज़ें जब हम 12th में डिस्कस करेंगे तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, इट इज़ अ वेरी गुड चैप्टर, द चैप्टर नंबर 2 दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके। अभी इसमें तो डिटेल में नहीं जा रहे हैं बट इट इज गुड चैप्टर, okay. Now the life cycle of the it has two distinct phases, okay. The first one is the sporophytic, the diploid sporophytic, and another one is the haploid gametophytic, ठीक है। मतलब ये ऑल्टरनेटिवली चलते हैं, जैसे कि अभी अपन ने देखा जैसे जूस जाइगोट बना डिप्लॉयड हो गया, ठीक है, फिर फर्दर आगे क्या बनेगा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, तो ऐसे ही वहां पे भी क्या होंगे ये ऑल्टरनेटिवली चलती रहती है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड एंड द डिप्लॉयड फेजेस and whether these phases are free living or dependent on others varying among different groups in plants, ठीक है। The phenomenon is known as the alternation of the generation, ठीक है, alternation of the generation in which the plant or in which the organisms is having both the phases, the haploid as well as the diploid, okay. Next one is the kingdom Animalia or the animal kingdom, ठीक है। अब these are characterized by the heterocytic eukaryotic organisms, okay, multicellular होते हैं, और animals में क्या होती है cell walls present नहीं होती है, animals में cell wall present नहीं होती है, ठीक है। They directly or indirectly depend on plants for food, फूड चेन सबने पढ़ी होगी, ओके। तो डायरेक्टली जो वेजिटेरियन है वो तो प्लांट्स पे करते ही है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं, बिकॉज आप कुछ भी खा रहे हो आगे वाला जानवर तो कहीं ना कहीं प्लांट पे डिपेंडेंट है ही,
Okay, they digest their food in an internal cavity and store food reserves as glycogen or fat. ठीक है, their mode of nutrition is holozoic, मतलब by ingestion of the food. ठीक है, खाना हम क्या करते हैं, अंदर लेते हैं. Okay, they follow a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size. Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism. Most of them are capable of the locomotion. Okay, movement के लिए. ठीक है, the sexual reproduction is by copulation of male and female followed by the embryological development. That's it. Okay, ये सिर्फ read किया है because it is present in this chapter. ठीक है, अब जो डिस्कस करने वाली लास्ट चीज है दैट इज द वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड द लाइकेंस. ठीक है, इसको अपन डिस्कस करते हैं. चलो भाई, अब जो आर.एच. विटेकर ने जो 1969 में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था उसमें दिया तो ठीक, लेकिन क्या प्रॉब्लम हुई कि वहाँ पे उन्होंने सिर्फ उन लोगों के लिए जगह बनाई जिनके पास एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर था. ठीक है, जिनके पास एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर था, लेकिन जिन ऑर्गेनिजम्स के पास सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है उनका क्या होगा. ठीक है, उनका क्या होगा, उनका तो कुछ नहीं होगा. जब आपको अगर कभी आपने पढ़ा हो, कहीं सुना हो कि वायरस के पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, उसके पास क्या होता है, अपना सिर्फ एक वायरुलेंस कोट या एक प्रोटीन कोट होता है. ठीक है, उसके पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता. ठीक है, इट जस्ट हैज अ कोट एज इट्स आउटर कवरिंग. तो वायरसेस को जो थे, या इवन और एग्जांपल है वायरॉइड्स, प्रायंस, लाइकेंस, these are not basically cellular structures but these do exist. तो इनको क्लासिफिकेशन में, इनको उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया था. ठीक है, इनको उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया था. ठीक है, तो अब हम इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में अलग से पढ़ रहे हैं. ठीक है, अब ये बस एक इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि जो वायरस है, ओके, जो वायरस है वो हमारी लाइफ में या हमारी ह्यूमन, वैसे तो कहीं ना कहीं सबके ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन अगर अपन सिर्फ ह्यूमंस की भी बात करें तो वायरस प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल, ओके, इन दिस ह्यूमंस ऑल्सो. मतलब रोल तो नहीं बट हार्म पहुंचाने में तो डेफिनेटली इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बी इट द HIV वायरस, बी इट एनी वायरस. ठीक है, इवन जो जुकाम खांसी भी जो कॉमन कोल्ड होता है, इट ऑल्सो अकर्स बिकॉज ऑफ द viruses only. ठीक है, but since they do not have that cellular organization in the chapter 1 we've read about it, right, कि जो एक्चुअल जिसको लिविंग कंसिडर करते हैं अपन, वो किसको करते हैं, सेल्यूलर फॉर्म्स को. ठीक है, इसलिए क्या किया कि इन्होंने उसको हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया था. ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको इंक्लूड नहीं किया. बट स्टिल जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो में हो रही थी तो भी वो थी तो लिविंग रिएक्शन ही, सिमिलरली वायरस भी क्या होता है, नॉट ट्रूली लिविंग बट स्टिल दे आर लिविंग. ठीक है, नाउ द वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर organism. ठीक है, the viruses are the non-cellular organisms that are characterized by having a inert crystalline structure outside the living cell. Inert crystalline मतलब it is not reactive, okay, it has a inert crystalline structure outside the living cell. ठीक है, अगर अपन लिविंग सेल की बात नहीं कर रहे जिसमें ये घुस के इन्फेक्ट करता है, तो ये इसके पास क्या होता है, एक इनर्ट क्रिस्टलाइन शेल होता है. ठीक है, इट हैज अ इनर्ट क्रिस्टलाइन शेल आउटसाइड अ लिविंग सेल. ठीक है, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स किलिंग द होस्ट. ओके, ये चीज शायद हमने यहाँ पे नहीं पढ़ी है, लेकिन जब आप 12th में डिस्कस करेंगे HIV इन्फेक्शन को, ओके, तो आपको ये लाइन डेफिनेटली क्लिक करती है अगर आप HIV इन्फेक्शन पढ़ते तो, कि वायरस क्या करता है, अपना जो DNA मटेरियल होता है, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द वायरुलेंट जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, इट डज व्हाट, इट
the virus injects or infects the human cell or any cell, okay, and it has that mechanism that it takes over the machinery, the replication machinery of the होस्ट बॉडीज ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एचआईवी वायरस भी ऐसे ही करता है कि अपने डीएनए को, अपने आरएनए को क्या करता है, जो ह्यूमन का डीएनए होता है, ठीक है, उसके साथ, उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड करवा देता है, और हमारी बॉडी उसको खुद का ही जो डीएनए है उसको समझ के क्या करती रहती है, रेप्लिकेट करती रहती है, ठीक है। और जितना ज्यादा उसका रेप्लिकेशन होता जाता उतनी हमारी बॉडी क्या होती जाती है, इन्फेक्ट होती जाती है, ठीक है। और सिमिलरली ये भी यही बोल रहा है कि द वायरस इन्फेक्ट्स द सेल एंड इट हैज दैट capability that it overtakes the machinery of the host cell organism, okay. Now the name virus, that means venom or poisonous fluid, ठीक है। इसको वायरस क्यों बोलते हैं, because it means venom या poisonous fluid. It was given by Dmitry Ivanovsky, okay, in 1892 and recognized certain microbes as casual organism of the mosaic disease of the tobacco, ठीक है। Now these were found to be smaller than the bacteria because they passed through bacteria proof filters, ठीक है। अगर बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, अगर बैक्टीरिया जितना या उससे बड़ा होता तो वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से कभी नहीं निकल पाता, ठीक है। इसलिए पता इनको चला कि भाई ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, बैक्टीरिया से साइज में क्या है, छोटा है, ठीक है। नाउ M.W. Bijanek in 1898 demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluids as contagium vivium fluidum, that means infectious fluid, infectious living fluid, ठीक है, contagium vivium fluidum, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, infectious living fluid। ये सब histories हैं, okay, you can remember this, के who said this, okay, and in which year। उसके बाद third was W.M. Stanley in 1935 noted that virus could be crystallized and crystals consist largely of proteins. As I said, these viruses have a proteinaceous coat on them, ठीक है। They are inert outside their specific host cell, जब अपने होस्ट सेल के बाहर हो ये इनर्ट होते हैं, मतलब रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ, ठीक है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ऊपर से इनके पास क्या होता है, प्रोटीन कोट्स होते हैं एंड दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, ठीक है, दीज आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, ओके। बाहर जो इनका होस्ट सेल है उसके अगर ये बाहर है तो ये रिएक्ट नहीं करते, दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक है। नाउ इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस आल्सो कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, दैट कुड बी ईदर आरएनए और डीएनए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ओके। किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों नहीं हो सकते, उसके पास या तो आरएनए है या तो क्या है, डीएनए है, ठीक है। अब एक वायरस क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। एज आई सेड कि जो वायरस होता है वो हमको इन्फेक्ट कैसे करता है, उसके पास एक प्रोटीन कोट होता है और उसके अंदर उसका डीएनए मटेरियल होता है, डीएनए मटेरियल वो इंजेक्ट कर देगा होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर और प्रोटीन कोट अपना बाहर ही छोड़ देगा, ठीक है। तो इसको न्यूक्लियोप्रोटीन कहा गया बिकॉज इट कंटेन्स द न्यूक्लियर मटेरियल एंड एज वेल एज द प्रोटीन कोट, ठीक है। तो इट इज बेसिकली अ न्यूक्लियोप्रोटीन। नाउ इन जनरल द जो आरएनए होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है इट इज बेसिकली द आरएनए, ओके। जो हम ह्यूमंस होते हैं या एज सच अगर यूनिवर्सली देखें तो डीएनए इज अवर genetic material or the dominant genetic material, but when it comes to the RNA, when it comes to the viruses, the RNA is the कॉमन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और जो प्रोटीन कोड की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैप्सिड, जो कि क्या बना होता है, कुछ स्मॉल सब यूनिट से बना होता है जिसको हम बोलते हैं कैप्सोमर्स, ठीक है, जो कि क्या प्रोटेक्ट करता है, उसके न्यूक्लिक एसिड्स को, ठीक है। ये क्या होता है, कुछ पॉलीहेड्रल फॉर्म्स में
अरेंज्ड होता है, ठीक है. एंड देयर आर एग्जाम्पल्स लाइक द हर्पीज, द स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा, HIV, है ना. तो ये क्या होता है, वायरस कॉज, मतलब वायरस से कॉज हुई हुई डिजीजेस होती है, ठीक है. So now by this we end this chapter, that is the biological classification, and now in the next class we will start discussing about the kingdom plantae. Okay, thank you.